ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਟਾਰ ਟੀਵੀ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਭਰਮੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ 2025 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੀ ਮੇਸ਼ ਦੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਔਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅੱਜ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰ ਕੀ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਆ? ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਇਹ ਰੂਟੀਨ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਲਾ ਹੈ ਉਹ 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀਆਂ। ਇਸ ਸਾਲ ਕੁਝ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਕੁਝ ਆਰਡਰ ਹੈ ਲੰਗਰ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਾਰੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਚਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਟਾਇਲਟਸ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਸਾਡੇ ਉਹ ਉਸ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਇੰਸ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬੜੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹਮਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰੋਸਣਗੇ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਗਰਮ ਖਾਣਾ ਪਰੋਸਣ ਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਪੈਕੇਜਡ ਫੂਡ ਜੋ ਹੈ ਲੰਗਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅਸੀਂ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਪਾਏਂਗੇ। ਸਰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੰਗਰ ਲਗਾਉਣਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਇਸ ਵਾਰ ਰਹੇਗਾ? ਆਨਲਾਈਨ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ। ਤਾਂ ਲੰਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਈਮੇਲ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਫਾਰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਉਹ ਸੀਏ ਆਡਿਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਹ ਲਾਣਗੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਲਾਣਗੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਆਡਿਟਡ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਅਕਾਊਂਟਡ ਫॉर ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਜੀ। ਸਰ ਲੰਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਾਂ ਸੀ ਆ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜੀ? ਲੰਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਲੰਗਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਲੰਗਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਲਕਿ ਲੰਗਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਸਰ ਇਸ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਨੀ ਮੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਅਪਡੇਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਨੌਨ ਵੈਜ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖਤਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨੌਨ ਵੈਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਰਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰਸਟ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਵਲੰਟਰੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਰੱਗਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟ ਪਰੋਸਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਜੀ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ? ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਆਉਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮਤਲਬ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭੀੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰ, ਤਾਂ ਉਹ
ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਦੋਂ ਬਣਾਉਣ ਤਾਂ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰयास कर रहे हैं जी। ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अच्छा ਅਸੀਂ एक्सपीरियंस दे पाएँ। लोग हैं जो नॉन ऑफिशियल अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, एक मीटिंग भी उनको भी हमने बुलाया था ताकि जो लोकल हमारा यहाँ से व्यू पॉइंट होता है वो आप आपस में शेयर कर सकें जो है जो सारी बातचीत है। तो एक तो प्रमुख बात ये कि जैसा आपने सुना भी होगा ज़्यादातर लोगों ने कि एक एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के ऑर्डर हुए हैं। ग्रीन ट्राइब्यूनल में कोई व्यक्ति पिछले साल गया था, उसने कहा भी यहाँ बड़े दो चीज़ें उसने मेनली उठाई थी कि एक तो यहाँ स्वच्छता की स्थिति जो है वो ठीक नहीं है, भाई यहाँ बड़े पैमाने पर लोग आते हैं पर टॉयलेट्स वगैरह की व्यवस्था जो है वो प्रॉपर नहीं होती। और दूसरा उसने कहा था कि यहाँ पे अनरेगुलेटेड जो है ना, मतलब अनरेगुलेटेड कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, भाई कोई पूछ मांग नहीं है और जिसका मतलब जो कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है वो बड़े पैमाने पर अनरेगुलेटेड हो रही है। तो उसके संदर्भ में एनजीटी ने कुछ आदेश पारित किया है, उसका मैं प्रमुख आपको इसलिए हमने शेयर भी किया था आपके ग्रुप्स में, ये जो ऑर्डर है उसको भी शेयर किया, जो आप लोगों में से इच्छुक हो उसको पढ़ भी सकते हैं। तो उसकी जो मेन बातें ये है कि एक तो उन्होंने कहा भी जो एंट्री है ना इसकी, एक तो ये रेगुलेट करो जो यात्रा पीरियड में भी और नॉन यात्रा पीरियड में भी, क्योंकि ये है फॉरेस्ट एरिया या सेंचुरी का एरिया ये जो है। तो उन्होंने कहा भी ह्यूमन एक्टिविटी जो है ना यहाँ पे उसको रेगुलेट करो, जो भी आए वो रजिस्टर होके आए। और एक तो ये भी कहा भी इसके ऊपर एक लिमिट फिक्स करो भी दिन में कितने लोग आ सकते हैं यहाँ पे, ताकि जितनी इसकी यहाँ की कैरिंग कैपेसिटी है उस हिसाब से लोग वहाँ आए। दूसरा इन्होंने ये इसी से मतलब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए कहा है, और ये कहा गया है कि नॉन यात्रा पीरियड में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इसको रेगुलेट करेंगे यहाँ पे एंट्री, यात्रा पीरियड में जो है वो ट्रस्ट इसको रेगुलेट करेगा। तो दोनों ये चीज़ें यहाँ पे मतलब ये कहा गया उसमें। उसके बाद एंट्री के बाद रेगुलेशन के अलावा उन्होंने कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कुछ जो निर्देश दिए हैं उसमें ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति बिना परमिशन के कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकता। कमर्शियल और अन्य गतिविधि नॉन फॉरेस्ट्री एक्टिविटी जिसको कहते हैं हम, फॉरेस्ट गतिविधियों से अलग जो है कोई व्यक्ति बिना परमिशन के नहीं कर पाएगा। तो उसमें कमर्शियल के लिए उन्होंने कहा है कि भाई स्पेस मतलब हम वो चिन्हित करेंगे भी किस एरिया में जो है ना दुकानें लग सकती, किस में नहीं लग सकती, किस में लंगर लग सकते, किस में नहीं लग सकते, तो वो चिन्हित होगी। उसके बाद वो अलॉटमेंट का कोई प्रोसीजर होगा, उनको जो दुकानें चिन्हित करते हैं या लंगर का स्पेस है उनको चिन्हित करके उनको अलॉटमेंट करने का कोई प्रोसीजर होना चाहिए। और उसके बाद कहा है भी प्रोडक्ट रिस्ट्रिक्शन, जिसमें ये कहा है भी नॉन बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग में, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब समझते होंगे, उसके जो पैकेजिंग में जो मटेरियल है उसको आप नॉन बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग में जो खाने की वस्तुएं हैं उनको हम वहाँ उसको निषेध कर दिया उन्होंने ऑर्डर में जो है। ये कहा है भी जो व्यक्ति हॉट कुक्ड फूड मतलब गर्म खाना जो मतलब बनाया जाता है जो खाना भी पैकेज खाने के अलावा आइटम के अलावा जो गर्म खाना उसको उसमें कर सकते हैं। और सिंगल यूज प्लास्टिक को भी उन्होंने निषेध किया है। सिंगल यूज प्लास्टिक जो है जो हमारा पेपर प्लेट्स होगी, सॉरी ये जो हमारी प्लास्टिक के कोई या थर्मोकोल के होते हैं इन चीज़ों को उनको भी बंद किया है। और लंगरों के लिए कहा है कि इनको रेगुलेट जो है मनी मेज ट्रस्ट ही करता रहेगा, क्योंकि यात्रा पीरियड में ये लगते हैं, पर उनके ऊपर भी यही अप्लाई करेंगी जो रिस्ट्रिक्शंस है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग वाले उसको नहीं बेच सकते, बिना परमिशन के नहीं लग सकते, और ये सारी चीज़ें जो उसमें कहा गया है। उसके बाद कहा गया कि सैनिटेशन एंड एनवायरनमेंट फी, क्योंकि ये वन क्षेत्र है और इसमें जो सैनिटेशन मतलब जो एक तरह का एक प्रिंसिपल इसमें कहा गया भी पोल्यूटर पेज एक प्रिंसिपल होता है, जो प्रदूषण फैलाएगा वो उसकी कीमत अदा करेगा। तो उसी तर्ज पे मतलब सैनिटेशन फी ली जाएगी, जो ये जो यात्रियों से भी ली जा रही है, इसका नाम भी सैनिटेशन फी, क्योंकि वो जा रहे हैं और कोई ना कोई जो वन क्षेत्र है उसमें गतिविधि कर रहे हैं, तो उनसे भी एक सैनिटेशन फी। अन्य जो भी उसमें कोई भी गतिविधि करेगा, चाहे कमर्शियल करेगा चाहे लंगर लगाएगा, वो भी एक सैनिटेशन फी वो पे करेंगे, जो ऑलरेडी आप पे करते भी रहे हैं। उसके अलावा
टॉयलेट्स का प्रावधान करने के लिए कहा गया है और पानी की टेस्टिंग करने के लिए कहा गया है। एक जो मेन चीज इसमें कही गई है कि जो डल का जो ऊपर का जो साइट है ना, डल का जो कैचमेंट एरिया है, जो उसमें वर्ड यूज किया, कैचमेंट एरिया मतलब जिस क्षेत्र से भी डल को जहाँ से भी पानी फ्लो होकर जाता है ना, उसमें कोई भी गतिविधि नहीं होगी, ना कमर्शियल ना लंगर की गतिविधि। ये कहा गया है कि डल के कैचमेंट एरिया में कोई भी गतिविधि नहीं होगी, ये ऑर्डर है उसमें। तो ये सारी जो चीजें हैं, और इसके अलावा एक इसी तरह का ऑर्डर एक हाई कोर्ट का है, सुलेमान वर्सेस स्टेट, एक आजकल भी चला हुआ मामला ये, उसमें भी इसी तरह के लगभग जो है ना हमारे को कहा गया, ज्यादा वो वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर है जो ऑर्डर जो है। तो ये दोनों ऑर्डर हमने आपकी ग्रुप्स में डाले, शेयर किए हैं, तो आप में से जो पढ़ना चाहे उसमें से, पर ये जो हमारे ऑर्डर है कोर्ट के, इसके मुताबिक हमने कार्य करना और उसी मुताबिक जो हमने आगे की जो काम करेंगे उस मुताबिक ही, ताकि वो कंप्लायंस हो उनकी। तो एक आपका जैसे सैनिटेशन फी का मुद्दा रहता है ना, ये ट्रस्ट की मीटिंग में भी डिस्कस हुआ था, जब ये थोड़ी देर पहले हमारा हुआ था, तो लंगर से एक हम सैनिटेशन फी चार्ज करते हैं। तो इस बार हमने डिसाइड किया है कि जो दो तरह के लंगर है, एक तो वो लंगर है जो कि प्राइवेट जगह में लगते हैं, मतलब जो अपना रेंट पे लेते हैं, है ना, जो या रोड साइड लगते हैं, कहीं लगते हैं, जो प्राइवेट जगह जो ऑपरेट करते हैं, तो उनके लिए तो जो फीस है वो जैसा हमने पिछली बार 12,000 प्लस 5,000 का जो था हमारा जो है, वो यथावत मतलब वैसे रखेंगे उसको, जो है 12 और 5। जो फॉरेस्ट लैंड पे लग रहे हैं वहाँ एक प्रिंसिपल फॉलो करेंगे, जो ज्यादा बड़ा लंगर है उसको थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ेगा। मतलब इस पे जैसा कमर्शियल स्पेस के लिए भी हमने जो लगभग आइडिया था जो रेट किए हैं 10 रुपए पर स्क्वायर फुट। तो जो कवर्ड एरिया आपका कोई मान लो 1000 स्क्वायर फुट है, पर मिनिमम उसमें 12,000 रखा हमने, जो पिछला मेंटेन किया है। उससे ऊपर जो लंगर जिनका स्पेस ज्यादा ऑक्यूपाई करते हैं वो 10 रुपए पर स्क्वायर फुट के हिसाब से जो है ना वो सैनिटेशन फीस देंगे, क्योंकि कई बहुत बड़े बड़े लंगर भी हैं और जो ज्यादा कवर एरिया कर रहे हैं, तो मतलब ये जो यही उसको मतलब प्रोपोर्शनेटली जो है ना वो फिर पे करें उसको जो है। तो इसके बारे में आपका कोई राय हो तो आप व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि जैसे 1200 उनका कितना कवर एरिया, तो हमने पिछले साल भी कराया, तो इस बार भी कराएंगे, उसको वेरीफाई कराएंगे, ये रहेगा फॉर्मूला। लेते ही आ रहे हैं जी, पिछले सालों से लेते आ रहे हैं, 40 साल से जा रहे हैं, मैं 30 साल से जा रहा हूँ, कोई 50 साल से जा रहा है, ये सब इनिशिएटिव ही लेते हैं ना, तभी तो काम चल रहा है ना। ये सिर्फ धर्म के खाते नहीं, हर आदमी अपना अपना काम छोड़ गया था, वी आर आर बिजनेसमैन, कोई मतलब जॉब में है, कोई बिजनेस है, हम लोग ये तो हमारी ड्यूटी है। नहीं, आपका ड्यूटी है, ये हमारा भोलेनाथ का ड्यूटी है, आपका सरकार का ड्यूटी है। नहीं तो इसी को बैलेंस करना, बैलेंसिंग। देखो अगर वैसे इस पे मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सख्ती से मान लो चले ना, वैसे तो ये एक्टिविटी कोई भी नहीं हो पाएगी। वैसे बता रहा हूँ मैं, ऐसा लॉ चलेंगे तो लॉ चलेंगे। एक मिनट फिर भी बात सुन ले, फिर आप बताया। तो ये वैसे ये जो ऑर्डर है ना, एक तरह से हमारे लिए एक रिलीफ भी है कि उसने ये नहीं कहा कि भाई फॉरेस्ट एरिया में कैसे कर रहे हैं आप, सेंचुरी में कैसे, उन्होंने कहा भी करो पर थोड़ा रेगुलेट करो, है ना। तो एक तरह से उन्होंने परमिट भी कर दिया है उस कंडीशंस के साथ, बिल्कुल बिल्कुल, जो कि अगर कानून की दृष्टि से देखें तो हम स्ट्रिक्टली देखें तो शायद वो भी नहीं हो सकता, है ना। तो उसको हम थोड़ा सा ना, जब कोई मान लो जब इसकी कंप्लायंस जाएगी, अभी तक ये मतलब अलाइव है मामला, ऐसा नहीं कि बंद हो गया है। जब जाएगा तो हम ये देखेंगे ना कि हाँ जी वो जो हो रहा है पोल्यूशन या जो भी हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटी हो रही है, उसके एवज में हम कोई उसका उनका मुआवजा ले रहे हैं, मतलब टेस्टिंग कराई जो उसकी है ना। और ये भी कहा भी रेगुलरली टेस्टिंग होगी पानी की, तो उसमें कुछ जो है ना उसका जो क्वालिटी थी ना पानी की, वो उसमें कुछ उसके पैरामीटर्स डाउन थे। हाँ, तो डाउन थे, तो उसमें ये भी है जो आपके फीकल मैटर होता है ना, मतलब मल की भी उसमें जो उसमें क्वांटिटी थी। तो हम तो कोई नहीं चाहते कि भी ये जो नल का जिसमें लोग नहाते हो जो है ना प्रदूषित हो, तो अब उसी करके उन्होंने जो कैचमेंट एरिया करते हैं ना, जहाँ से पानी, ये जो आप कह रहे हैं ना यात्रियों की सुविधा के लिए, उसकी निचली साइड लग सकते हैं जहाँ पे पानी जहाँ का फ्लो नहीं करता, वही लग रहे हैं सर, ऑलरेडी उससे तो फ्लो कर रहा है, उससे पूरी साइड से वाटर फ्लो आ रहा है, वो सीधा वो उसका दोनों साइड से फ्लो हो रहा है। स्टेशन हुई थी जब आपने कहा था ना, मैंने आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि आपका लंदन का बजट कितना है,
आपने मेरे को गिराया था, मेरे को 1 करोड़ से ऊपर बताया था, मैं तो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ आपसे जो हम फीस चार्ज कर रहे हैं उसका हम कर क्या रहे हैं? कोई आपको टैक्स नहीं दे रहे, हम तो टैक्स ले रहे हैं आपसे जो कर रहे हैं हम उसकी फैसिलिटीज ही क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको वही मतलब ब्रीफ करूंगा तो क्या क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। आपको मैं मतलब ये अगर हम जब डिस्कशन करेंगे, हमारा प्रयास है कि बेटर फैसिलिटीज जो है ना क्रिएट हो, तो आप भी उसमें अगर मान लो कोई 15-20 हज़ार रुपये अगर कोई कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जबकि आप इतना काम करते हैं, करोड़ का बजट होता है आपका, 20 हज़ार रुपये आप डिजाइन करते हैं कि आप जो ट्रस्ट को नहीं देंगे। हमने पहले भी बोला था कि कहीं भी ले लो, जिस तरह हमने वो परमिशन में लिख के देते ना, 89 मेल टॉयलेट्स होने चाहिए थे और 100 होने चाहिए थे फीमेल टॉयलेट्स, 189। हाँ, उसमें से जो एक्चुअली थे लंगर ऑर्गेनाइजेशन लगाए थे 42 और 52, 94 ही लगे थे 189 में से, जो परमिशन में लिखा। प्लेटफॉर्म बना दो, मिट्टी का प्लेटफॉर्म, बारिश आएगा चला गया, इसके नीचे वो आप थोड़ा बहुत तो कंक्रीट करना पड़ेगा ना। अभी आपने बोला है कि आप मेंटेन कर सकते हो टॉयलेट, तो टॉयलेट जो है 1 साल बाद टूट गया, उसका फर्श हमने इंडियन सीट लगाया, इंग्लिश सीट लगाया, वो मिट्टी पे तो कितने Construction is allowed except for concrete / stone platforms to support temporary shops, है ना। तो स्टोन प्लेटफॉर्म बनाने का तो जिसमें परमिट किया है उसको नहीं हम कर सकते थे, नहीं यहाँ किया वो देखो स्पेसिफिकली लिखा है, दोनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं इनको, स्टोन और कंक्रीट और स्टोन प्लेटफॉर्म नहीं होता। लेकिन 2 चीजें इंपॉर्टेंट है, सिंगल प्लास्टिक का यूज बैन है क्योंकि वो इकोसिस्टम जोन है, सैंक्चुरी साथ में है, तो पूरा इसमें प्लास्टिक जो है सिंगल यूज प्लास्टिक वैसे उससे उधर भी और वैसे जनरली भी बैन है। हम लेते नहीं आता सर, हम लेते नहीं आता सिंगल प्लास्टिक इसमें सर 1.80 के करीब है, 80-90 के करीब है। आप क्या समझते हो, हम लोग प्लास्टिक लेके आते हैं। अब जो यात्रा पे ये जो वो बिकती है, रेनकोट बरसाती बिकती है, वो बैंड है, दैट इज सिंगल यूज प्लास्टिक। हम लोगों के लिए सर, हमारा तो बोरे में माल आता है, जो ऊपर वाले हैं बोरे में बेचते नहीं। आपको समझाना हमारी ड्यूटी है सर, आई ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर दैट, आपको वी समझाना आर ऑलरेडी प्रिपेयर फॉर दैट। और आपसे सभी लंदन से रिक्वेस्ट ये और जो सारा है ना पूरा कचरे से भरा हुआ है, बिल्कुल कहाँ हमारी आस्था और क्या जो हमने कितनी वो लेके आते हैं और वहाँ जाके जो है ना हम वो फैला के जा रहे हैं, तो वो भी तो चीज देखनी पड़ेगी ना, थोड़ा लोगों को जागरूकता तो फैलानी पड़ेगी ना। सबसे बड़ा पॉइंट ये है। तो हमारे से शुरू होता है, बिल्कुल हम अपने आप ही शुरू होता है, सिर्फ कुक्ड फूड देंगे आप, पका हुआ खाना जो लंगर वाले है ना। कोई इसमें कोई है किसी का कोई सजेशन? जी जी बोले। इस बार जो है हम कुछ अलग ही करेंगे और उनको हमने सर ये डायरेक्शन दे दी है। अभी जैसे जितने भी दुकानदार उभर गए हैं सर, उनका पूरा जितना का जितना एरिया है सर, उन्होंने सर पिछले साल 100 रुपये प्रति किलो हमने 50 कर दिया। वो जनरल 80 किलो 85 किलो, तो हमने ये हिसाब किताब लगाया कि 4000 के करीब फेल होता है, तो 50 रुपए किलो हुए होगा ना, तो उससे ऊपर जो होगा वो जो एक्स्ट्रा पे करेगा। और उनका भी यही कहना था कि क्योंकि यहाँ पंजाब में जहाँ लोग आते हैं और वो बहुत सारे कट्टे कट्टे जाते हैं, तो ये तो जो ओवरवेट है तो उस हिसाब से 50 रुपए किलो पे करेगा।